Assalamu alaikum. The topic for the class 12th, it is heredity. I am Malik Farooq from Boys Higher Secondary Lingate. You might have heard about heredity. We can define it that these are certain characters which are transmitted from one generation to the next generation. Heredity. ये आज का हमारा टॉपिक है. बिफोर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देयर आर सम अर्ली व्यूज ऑफ हेरिडिटी. Many viewpoints were put forward before Mendel to explain the transmission of characters from parents to offsprings. Mendel ने many viewpoints were put forward before Mendel. Mendel से पहले कुछ एक्सप्लेन किया गया था इसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में. The characters from which are transmission, which get transmitted from parent to offspring. First of all, it was a theory which we called as moist vapor theory. A Greek philosopher, Pythagoras, born 508 to 5500 BC, proposed that each organ of the animal body produces vapors and new organisms were formed by the combination of different organs. A Greek philosopher, जिसको हम पाइथागोरस भी बोलते हैं, पाइथागोरस इसका नाम था, उसने एक थ्योरी दी 580 कबल मसीह में that each organ of animal body का हर एक ऑर्गन, एक एनिमल बॉडी का हर एक ऑर्गन produced vapors and new organs was formed by the combination of different organs. हर एक ऑर्गन अपनी तरफ से कुछ वेपर्स तैयार करता है या बनाता है, उनके माध्यम से फिर नए नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और वो नए ऑर्गन्स बनाते हैं. उसके बाद एक दूसरी थ्योरी आई थी, फ्लूइड थ्योरी. दिस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय द एरिस्टोटल in 384 to 322 BC, and he was of the view that male produces highly purified blood, man's semen. Female's menstrual fluid, reproductive blood, was not as pure as male semen. The reproductive blood coagulate in the body of female and form the embryo. उसने एक थ्योरी दी जिसको हम फ्लूइड थ्योरी बोलते हैं. तो उसने क्या कहा अपनी थ्योरी में? कहा कि जो नर है, एक नर अपने अंदर एक साफ पानी तैयार करता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं, और एक मादा अपने अंदर एक रिप्रोडक्टिव ब्लड, एक फ्लूइड तैयार करता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव ब्लड बोलते हैं. दोनों के मिलने से एक एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, एक नई चीज़ जन्म लेती है. उसके बाद तीसरी एक थ्योरी आई, प्री फॉर्मेशन थ्योरी बाय लिवन हॉक in 1632 to 1723 was the first to observe the human sperms. लिवन हॉक एक साइंटिस्ट था जिसने ह्यूमन स्पर्म्स के बारे में उसने पहले ऑब्जर्व किया था उनको. थ्योरी वाज गिवन बाय द Swammerdam, a Dutch scientist. This theory believes that one of the sex cells or gametes, either sperm or egg, contained within itself the entire organism in the perfect miniature form, जिसको हम प्रीफॉर्मेशनिज्म बोलते हैं. Miniature form was called as homunculus. Figure number 5.2. Homunculus. The theory was supported by the Malpighi in 1673, Hotsocker in 1694, Delpitz in 1694, and Rocks in 1800. These were the 4-5 scientists who gave this idea, formation theory. The theory given by the Swammerdam, a Dutch scientist. This theory believes that one of the sex cells, चाहे वो sperm हो या egg हो, they contain
विद इन इट सेल्फ द इंटायर ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरी जन्म लेता है या जो दोबारा जन्म लेता है और फिर आता है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड, ये थ्योरी जो ये बात 2-4 साइंटिस्टों ने और इसमें ऐड कर दी। मालपीजी 1673, हॉट्सोसोगर इन 1694, डालपीट्स इन 1694 एंड रॉक्स इन 1800। इसके बाद एक और पॉइंट आया एपिजेनेसिस। Wolff in 1783 to 1794 proposed that many new factors such as tissues and organs appeared during the development of one organism which were not present in its original formation. एपिजेनेसिस, वुल्फ एक और बायोलॉजिस्ट था, नेचुरलिस्ट था, उसने कहा जो 1738 से 1794 तक ही प्रपोज्ड न्यू मेनी फैक्टर्स, उसने कुछ नए फैक्टर्स दे दिए, सच एज टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी उसने कहा कि अब एक और चीज़ है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं या ऑर्गन बोलते हैं, अपीयर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म नई एक जिंदा चीज़ बनती है तो उसके साथ साथ उसके ये एज्जा भी बनते हैं, मतलब टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है वगैरह, विच वर नॉट प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेशन, जो उसके ओरिजिनल फॉर्मेशन में नहीं होते हैं। इसके बाद एक और बात आई हेरिडिटी के मुतालिक, पैनाजेनेसिस। दिस वाज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन in 1809 to 1882. The founder of the modern evolutionary theory believed and proposed his views in 1868 in the light of cell theory and knowledge of the embryology, that very small, exact but invisible copies of each body organ and component gemmules were transported by the bloodstream to the sex organs and then assembled into gametes. Upon the fertilization, the gemmules of opposite sex were added. Thus, young ones has a blend mixture of pangenesis, hence with the characters of both of the parents. उसने एक नई बात दी, ये 1809 की बात है, 200 साल कबल। तो उसने कहा कि जिसने मतलब चार्ल्स डार्विन जो इस वक्त जो इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी का बानी भी है, जिसको हम इसका बानी भी कह सकते हैं, इसका जो फाउंडर है, एंड प्रपोज्ड हिज व्यूज़, उसने अपने व्यूज़ में ये बताया इन 1868 इन द लाइट ऑफ सेल थ्योरी के रोशनी में, दैट नॉलेज ऑफ एम्ब्रियो एंड द नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, दैट वेरी स्मॉल, एग्जैक्ट एंड इनविजिबल कॉपीज ऑफ ईच बॉडी ऑर्गन, हर एक बॉडी ऑर्गन के छोटे छोटे कॉपीज, ईच बॉडी ऑर्गन एंड कंपोनेंट यानी जिम्यूल्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द सेक्स ऑर्गन्स, कहाँ, सेक्स ऑर्गन्स में, एंड वहाँ से वो असेंबल हो जाते हैं। अपॉन फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्यूल्स ऑफ सेक्स वर एडेड, दस यंग वन्स हैज ब्लेंड मिक्सचर ऑफ पैनजेनेसिस, हेंस विद द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स। तो नई इसमें लेक्चर में हम पढ़ेंगे एविडेंस अगेंस्ट द ब्लेंडिंग थ्योरी और उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।